Hello friends, welcome. This is Akash Raipur. And friends, after a long time I came on to YouTube, and there are some demands of my dear friends. So therefore, from this day we are going to start the new series of some topic. These are related to social science, English, and there are so awareness of society. And this will help to understand the topic and the concept, and especially helpful for you. And students, are you audible? Yes. And second thing, from this day we are taking only one topic, and it means one chapter, and we are explain and revision complete topic. From this topic, according to NCERT, we have to think, we have to develop the thinking process in the student's mind, because the guidelines of NCERT book 2005, it is clear mention that the purpose of study social science and subjects to make the mind of students creative. Okay, my dear students, so from this topic, from this day we are going to start new concept. The topic is constitutional design and its development. Oh, my dear students, I will take the lecture in both language. It means bilingual. It will help you in English and Hindi medium students also, right? And this is vocabulary helpful for Hindi medium students, and you are now about the fact about of Hindi language. Okay? Yes, so student, constitutional design and development. In Hindi we can say that संवैधानिक रूपरेखा एंड इसका विकास, या फिर बोल सकते हैं संविधान का निर्माण और उसका विकास. किसी भी चीज के बनने की एक प्रोसेस होती है, ऐसा नहीं कि अचानक कोई चीज हो जाए. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो इंडिया का बना है उसमें भी बहुत एक टाइम रहा है, जिसके टाइम के अकॉर्डिंग बहुत टाइम से धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशनल की जो एक बैकग्राउंड प्रिपेयर हुआ, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट हुआ. बिफोर नाउ अबाउट द फैक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज डेमोक्रेसी, राइट? Because constitution is the part of democracy, so we have to clear in mind that what is democracy. Anybody have idea what is difference between monarchy system or democracy? In democracy we have right, but in monarchy we does not have right. Right, nice answer, Prashant Chauhan. Democracy, in the sense democracy we have a right, but in the monarchy system we have no right, generally no right. Okay, so we can understand the system of government. It means we can say that the type of government. In the system of government, how many type of government that we have. Okay, so first of all we are going to democracy. in हिंदी लोकतंत्र. क्या है? लोकतंत्र. और लोकतंत्र का जस्ट अपोजिट मोनार्की. क्या होता है बच्चों? मोनार्की. और मोनार्की मीन्स राजतंत्र. और इसका मतलब क्या है? लोकतंत्र. And the famous definition given by the Abraham Lincoln, the meaning of the democracy, it means by the people, of the people, for the people. This is called democracy. The system of government in which the head of government should be elected by the people of a nation. किसी भी देश का जो प्रमुख होता है ना, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होगा. इसी को हम बोलते हैं लोकतंत्र, यानी जनता का शासन. ओके, लेकिन दो टाइप और हैं. That's we have to understand. किसी को पता है सर? एक एंड बी कैसे एंड क्या बोल सकते हैं हम इसको? ऑटोक्रेसी. व्हाट इज दिस माय डियर स्टूडेंट? ऑटोक्रेसी. ऑटोक्रेसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्टेटरशिप, लाइक अ हिटलर. तो इसी को हम क्या बोल सकते हैं? डिक्टेटर. Dictatorship was in the time of Germany and by the time of Hitler, and today in the form of it is found in North Korea.
व्हाट इज द नेम ऑफ रूलर ऑफ नॉर्थ कोरिया? बहुत बढ़िया। लेकिन एक टाइप और होता है जो आपको मैं आज बताऊंगा, और उसको बोलते हैं OLIGARCHY, ओलिगार्की। ओलिगार्की मीन्स कुलीन तंत्र। बच्चों ये क्या होता है कुलीन तंत्र? इतने टाइप की क्या होती है? गवर्नमेंट। तो हम क्या बोल सकते हैं? आप मेरे साथ ही नोट डाउन करें प्लीज स्टूडेंट। टाइप ऑफ गवर्नमेंट, इसका मतलब क्या है बच्चों? लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, ऑटोक्रेसी में, मोनार्की में और क्लीन तंत्र में। तो यहां क्या बोल सकते हैं अपन इसको? निरंकुश। इसको नोट डाउन करने से पहले बस थोड़ा सा समझ लीजिए बच्चों। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में क्या होता है हमारे पास? गवर्नमेंट, वो भी कैसी? इलेक्टेड मेंबर। ओके। एंड सेकंड इज ओलिगार्की। बेटा एक सिस्टम होता है गवर्नमेंट का, ये कहां पाया जाता है? किस कंट्री में? ब्रिटेन में। जहां पर डेमोक्रेसी भले ना हो लेकिन फिर भी क्या हो, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं ना, उनका एक ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ एलीट क्लास, ग्रुप ऑफ बिजनेसमैन, व्यापारियों का एक बड़े बड़े पैसे वाले लोगों का समूह होता है जो गवर्नमेंट को चलाता है। उसको बोलते हैं ओलिगार्की, कुलीन, पैसे वाले लोगों का शासन। और मोनार्की यानी किंग्स, राजा का शासन। ये हुआ किंग्स रूल। और निरंकुश यानी कि जिस पर, इट मींस द हेड ऑफ गवर्नमेंट और कंट्री which are not control of people of nation, this is called dictatorship, like Hitler, uncontrolled man, like a nuclear reaction, कोई इसको रोक नहीं सकता। ये था जर्मनी में। तो इसके एग्जांपल देखो बेटा, डेमोक्रेसी का एग्जांपल कौन सा कंट्री है? इंडिया एंड USA, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और कुलीन तंत्र का एग्जांपल कौन है बच्चे? ब्रिटेन, ब्रिटेन, राइट। एंड मोनार्की लाइक दैट, सपोज सऊदी अरब। सऊदी अरब कहां पाया जाता है? मिडिल ईस्ट में, ठीक है। एंड दिस वाज द कंट्री वेयर द स्टार्टेड ऑफ इस्लाम रिलीजियन, मक्का एंड मदीना। यस कम्स निरंकुश, दिस इज द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट विच आर द रूलर ऑफ कंट्रीज एंड कंट्रोल। और ये कौन सा था? पहले कौन सा था? जर्मनी, अर्लियर जर्मनी, प्लीज, अर्लियर यानी पहले का जर्मनी, इन द टाइम ऑफ हिटलर, एडोल्फ हिटलर। बट इन प्रेजेंट टाइम, नाउ इन प्रेजेंट, नॉर्थ कोरिया। These are the form of government. It means these are the type of government. सरकार के शासन के प्रकार। लोकतंत्र, इनको हम समझते हैं एक मिनट में कैसे। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी, जनता का शासन। कुलीन तंत्र यानी ओलिगार्की, जहां पर किसका शासन होता है? बिजनेसमैन लोगों का, कुलीन वर्ग के लोगों का। मोनार्की मीन्स राजा का शासन, जहां पर किंग रूल करता, लाइक सऊदी अरब। और डिक्टेटरशिप मीन्स ऑटोक्रेसी, जहां पर अनकंट्रोल हो, राजा अपनी मनमर्जी के अकॉर्डिंग शासन करे। पहले कौन था? जर्मनी। प्रेजेंट में कौन है? नॉर्थ कोरिया, किम जोंग का जो शासन है वो। ये है टाइप ऑफ गवर्नमेंट। प्लीज टेक योर टाइम एंड नोट डाउन इट माय डियर स्टूडेंट। एंड कम टू नेक्स्ट पॉइंट, यू आर नोट डाउन दिस, सो प्लीज नोट डाउन। And after take us some time. Okay students, so आगे बढ़ते हैं और आगे के सफर को समझने के लिए प्लीज हमें ये समझना जरूरी है, ये तो हमारे टाइप ऑफ गवर्नमेंट हुए। सो बेसिकली हम इतना जानते हैं स्टूडेंट, क्या है सर? ये मोनार्की सिस्टम है, ओके। और इसको हटा के हम क्या लाए? डेमोक्रेसी। राजतंत्र को हटा के क्या लाए? लोकतंत्र। क्यों लाए? बिकॉज एनसीईआरटी दिस इज टीचर्स दैट व्हाई इज हैपन एंड व्हाट इज दिस, व्हाट एंड व्हाई, दीज आर द क्वेश्चंस।
तो यहां लगाओ क्वेश्चन मार्क। डेमोक्रेसी क्यों लाए, जरूरत क्यों पड़ी भैया? तो सर लाइक राइट टू वोट एंड फंडामेंटल राइट एंड इक्वालिटी, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, सिक्योरिटी, these are not exist. Yes, come student. And after all, there is no system of government. It means गवर्नमेंट प्रॉपर वे में डिसीजन भी नहीं ले पाती है, इसके डिसीजन भी इनकम्प्लीट रहते हैं क्योंकि वो अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। किसमें? मोनार्की सिस्टम में। और यहां पर क्या होता है? किंग्स का रूल, जो कि एक हायरार्की को बताता है, डायनेस्टिक रूल को, कि राजा का लड़का ही राजा बनेगा। ये सब किसके फीचर हैं बच्चों? मोनार्की सिस्टम के। बट इसमें क्या लगाएंगे सभी में? नोट। ये पूरी की पूरी चीजें, इनमें से इतने मैनर वाली चीजें मोनार्की में नहीं होती हैं, बट डेमोक्रेसी में पूरी की पूरी चीजें फॉलो होती हैं। और किंग रूल की जगह क्या आ जाता है? गवर्नमेंट रूल। गवर्नमेंट रूल इट मींस लाइक अ प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट। इट मींस द हेड ऑफ गवर्नमेंट शुड बी इलेक्टेड। ओके, and from this point of view, from here we are going to start the topic constitution design and its development. These are the basic fact, हमें जानना जरूरी है। ओके, यहां से समझ में आता है कि कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन कैसे हुआ। तो सबसे पहले आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? एनीबॉडी हैव आइडिया? The written set of rules बहुत बढ़िया। for the person It means country. we can say that set of rule and law. Sir, set of rule मतलब रूल एंड लॉ, नियम और कानूनों का एक संग्रह। इसी को हम क्या बोलते हैं? संविधान। नियम कानूनों का एक ऐसा संग्रह जो पूरे देश को अपने में बांधे रखता है, उसको क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, लेकिन संविधान की एक बात है, और वो क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर टू टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट अनरिटन एंड विच काइंड? रिटन। माय डियर, इसको बोल सकते हैं लिखित और अलिखित संविधान। ओके, रिटन और अनरिटन, लिखित और अलिखित। बट हमें ये समझना है, कॉन्स्टिट्यूशन कहीं से तो आया होगा, कोई तो इसका मदर फादर होगा ना। सो माय डियर स्टूडेंट, द मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन। इट मीन्स द मदर ऑफ डेमोक्रेसी इज ब्रिटेन। So in constitution, this is mother of constitution. The country name was which country? Britain. And we have now two facts from here. First, Britain is the mother of constitution. Second, the constitution of Britain is unwritten. कैसा है? Unwritten. But my dear student, first written constitution, India. no India, first written constitution is USA, United States of America. अमेरिका। लेकिन इंडिया वाले किसी से कम नहीं है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज इंडिया। सो वी कैन से दैट वर्ल्ड्स लार्जेस्ट constitution, which country? India. Sir, India is a country that has a largest written constitution of the world. कौन सा? written, ध्यान रखना। written यानी लिखित संविधान। और एक मजेदार बात,
ब्रिटेन का कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन की माँ है, उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है? अनरिटेन, क्योंकि माँ के लिए कोई कुछ लिख नहीं सकता है। किसी शायर ने कहा है कि मैं क्या लिखूंगा उस माँ के लिए जिस माँ ने मुझे खुद लिखा है। सो ऐसा ही कुछ यहाँ है माय डियर स्टूडेंट्स, सेट ऑफ रूल। बट समबडी आस्क यू सर हु इज द गार्जियन। जैसे आप एक बेबी बॉर्न होता है तो उसके पेरेंट्स होते हैं, गार्जियन होते हैं, रक्षक होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन का गार्जियन कौन है सर? दिस इज जुडिशरी। व्हाट? जुडिशरी। इट मीन्स इंडिपेंडेंट जुडिशरी। स्वतंत्र कौन सी? न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका। It means, my dear student, this is called Supreme Court. According to Article 32, we can take the help of Constitution through Supreme Court, okay? And second thing is High Court. Article 226 and Lower District Court. These are the judiciary body of Indian Constitution. Okay. If somebody asks you how many organ, what organ of state? Yes, student, come please. Organ, dear student, the organ of state. What is organ? The main feature in organ of state, that is called judiciary system, because which lead or control the administration of a government of a nation. If in any country, if there is no judiciary system, so how to control the people? Suppose that in India there is no Supreme Court, High Court and District Court and no police and army. So can we control 142 crore people? These are like fire, like a pushpa. These are uncontrollable. But संविधान में किसी भी देश को, संविधान को चलाने के लिए क्या लाए? संविधान में कुछ चीजें जोड़ी गई, और जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? लेजिस्लेचर और जुडिशरी एंड फिर एग्जीक्यूटिव। हिंदी में क्या बोलेंगे सर? न्यायपालिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और सर विधायिका। लेजिस्लेटिव असेंबली को क्या बोलेंगे? विधायिका। ये होते हैं हमारे सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका। बच्चों इसको जरूरी है समझना। तो किसके अंदर आते हैं ये? स्टेट में। किसी भी कंट्री को चलाने के लिए कौन कौन से फैक्टर जरूरी है वो समझ लो। स्टेट में होते हैं हमारे देश में। सपोज दैट इंडिया इज अ स्टेट, ठीक है। देखो इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली है ना, ये पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है, लाइक लोकसभा और राज्यसभा एंड विधानसभा और विधान परिषद, ओके। और जुडिशरी सिस्टम में क्या होता है सर? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और एग्जीक्यूटिव में सर प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स, राज्य, ओके। ये सिस्टम होते हैं हमारी गवर्नमेंट के ऑर्गन। मैं इसका ओवरव्यू देता हूं, समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन, कॉन्स्टिट्यूशन, अब आपको बोलना है, मैं आपसे पूछूंगा, सो यू हैव टू स्पीक। सेट ऑफ रूल, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? नियम कानूनों का एक संग्रह। सेट ऑफ रूल, आपको आंसर देना है। वर्ल्ड का रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस? यूएसए। लिखित संविधान, अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन का है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा लिखित संविधान। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज हु इज द मदर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? ब्रिटेन इज कॉल्ड मदर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। गुड। एंड टाइप ऑफ स्टेट, ऑर्गन ऑफ स्टेट, एग्जीक्यूटिव, ओके। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका। यस, आस्क। Constitution is important. Why constitution is important? Nice question, but we have to understand. Suppose that ये हमारा हिंदुस्तान है बच्चे, and in this country the people are living 142
करोड़। ओके, इतने लोगों को कंट्रोल करना है आपको, 140 करोड़ 142 करोड़ लोगों को कंट्रोल करना है। अगर जैसे आप लोगों आपको अगर आपके पेरेंट्स का फियर नहीं होगा तो आप मोहल्ले में किसी भी बच्चे से नहीं डरेंगे, किसी के भी बच्चे को कूट के आ जाओगे, राइट? होता भी है, छोटे छोटे बच्चे बड़े बड़े बुली होते हैं। ऐसे ही जब हम बड़े हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग क्राइम कर रहे हैं। आप आज भी आप देख रहे हो बहुत सारे लोग इंसिडेंट कर रहे हैं, कोई क्राइम कर रहा है, अनसोशल एक्टिविटी कर रहा है, कम्युनिटी के बेस पर दंगे हो रहे हैं, राइट्स हो रहे हैं। इन चीजों को कंट्रोल करने के लिए एक बॉडी चाहिए, एक संस्था चाहिए। तो इसलिए हमने क्या बनाया, आर्मी और पुलिस। आर्मी जो कि हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटी करती है, हमारे कंट्री की सिक्योरिटी, बट इंटरनल साइड ऑफ कंट्री, अंदर भारत में, वो हमारा पुलिस सिस्टम लाइक अ ब्यूरोक्रेट्स, ठीक है, अधिकारी ऑफिसर्स। अगर ये नहीं होंगे तो व्यक्ति है ना AK-47 लेकर रोड पे घूमेगा, राइट? एंड इन इंडिया द कंडीशन विल क्रिएट लाइक अ पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अभी आपने देखा अफगानिस्तान में तालिबान कैसे घूम रहे हैं बंदूक ले लेके। ये कंडीशन होती है जब किसी कंट्री में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है या उसको फॉलो नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन होना ही इस बात का प्रमाण नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो 1919 में परवेज मुशर्रफ ने क्या किया, तख्ता पलट कर दिया रेफरेंडम के थ्रू। 2002 में प्रेसिडेंट बन गए। कहाँ के बने? पाकिस्तान के। आर्मी के जनरल थे, मिलिट्री के, तो वो बन गए। तो ये सिस्टम है बेटा, ठीक है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ, ऑर्गन ऑफ गवर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो जुडिशरी इज द सुप्रीम बॉडी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज जुडिशरी, एंड जुडिशरी इज द गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इन हिंदी न्यायपाल का कौन है बेटा? संरक्षक है। किसकी? राइट, गुड क्वेश्चन। सौर्य भारद्वाज, सौर्य तोमर, सौर्य asked the question that can we change the constitution? There are two words, amendment and change. Change means, it means जैसे कि अभी हम CBSE का जो पैटर्न पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक्स के सिलेबस को चेंज कर दे पूरा पैटर्न। ये होता है सिस्टम में चेंज, और अमेंडमेंट ये होता है कि कुछ चैप्टर को हमने रिमूव कर दिया, कुछ चैप्टर को हमने ऐड कर दिया। दीज आर टू टर्म्स, अमेंडमेंट और चेंज। कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किए जा सकते हैं लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं किया जा सकता। वी कैन चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन बट वी कैन नॉट चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान को नहीं बदल सकते, संविधान में बदलाव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू 44 Constitutional Amendment Act in 1978, and it is said that India is a socialist country. So ये वर्ड हमने जोड़ा कब? 1978 में। और यही हमने एक वर्ड और जोड़ा, क्या सर? फंडामेंटल राइट, नॉट सो फंडामेंटल राइट बट फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य। तो बच्चों पहले हमारे मौलिक कर्तव्य कितने थे? 10, फिर कितने हो गए? 11। सो दीज आर अवर फंडामेंटल ड्यूटीज। ओके, तो चेंज किया जा सकता है लेकिन संविधान को पूरा चेंज नहीं किया जाए, बेसिक स्ट्रक्चर में उसके चेंजेस नहीं हो सकता। ओके, शैल आई रिमूव। अब यहां से हम पढ़ते हैं, किसी कंट्री का एग्जांपल लेंगे और समझते हैं। सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन, importance of constitution in modern world. okay, question of Sushant that what is the importance of constitution in modern world? Like that, this is India, okay, and this is Pakistan. Suppose that in India there is constitution, Pakistan there is constitution, but like North Korea there is no constitution, constitution नहीं है। तो जहां पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है वहां पर उनके जो पीपल है ना, उनके राइट्स भी प्रॉपर वे में उनको नहीं मिल पाते हैं। लेकिन इंडिया में हम एंजॉय के साथ रह रहे हैं, हमारे पास अधिकार है, राइट्स है, राइट टू वोट है, इलेक्शंस लड़ सकते हैं, रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर सकते हैं, लगभग हर तरह की हमें आजादी और स्वतंत्रता है। लेकिन पाकिस्तान में क्या है सर? कॉन्स्टिट्यूशन तो है।
मैंने दो कंट्री के एग्जाम्पल दिए हैं, एक इंडिया, एक पाकिस्तान, एक नॉर्थ कोरिया। नॉर्थ कोरिया में कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है तो वहां पर राइट्स में भी प्रॉब्लम है, और यहाँ पर डिक्टेटर है, राजा अपने मन के मुताबिक चलता है। पाकिस्तान में कॉन्स्टिट्यूशन तो है बट प्रॉपर मैनर में नहीं है, मोरालिटी उसके कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, इसलिए यहाँ पर तख्ता पलट होता रहता है। बट इन इंडिया वी हैव अ सुप्रीम कोर्ट which can control the body of government and people, because supreme court, this is the supreme body, सर्वोच्च न्यायालय। सुप्रीम कोर्ट को क्या बोलते हैं? सर्वोच्च न्यायालय। कहां पर है हमारा? सर दिल्ली में। कहां पर है? दिल्ली में। ठीक है, एक ही है सुप्रीम कोर्ट, एंड 24 हाई कोर्ट है हमारे ऑल इंडिया में कंप्लीट। ठीक है बच्चे, तो समझे मॉडर्न में क्यों जरूरी है, क्योंकि आज यहाँ के लोग एंजॉय के साथ रह रहे हैं, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन को कंप्लीट वे में फॉलो हो रहा है, वरना ये प्रॉब्लम आएगी लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया और भी कुछ कंट्री, राइट। आगे बढ़ते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इन साउथ अफ्रीका। सर बेटा कॉन्स्टिट्यूशन एक रूल बुक होती है, तो ये गवर्नमेंट को किस तरीके से चलाना है, किसी कंट्री को कैसे रन करना है, उसी के लिए बनता है कॉन्स्टिट्यूशन, इट मींस संविधान। ओके, सो कॉन्स्टिट्यूशन, एक मिनट बच्चों, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, व्हाट सर? डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन इन साउथ अफ्रीका। We are put the example from South Africa. This is the country located in Africa continent. Here is the story of a great man who became the first black president of the world. Who is known as Nelson Mandela. साउथ अफ्रीका में क्या होता है बेटा? यहां पर एक सिस्टम था, व्हाट सर? अपार्थाइड सिस्टम। Apartheid system. So we have to understand, sir, what is this? The discrimination on the basis of racism and caste. It means the racial discrimination by the white people over the non-white people. It means क्या था बेटा ये? सर डिस्क्रिमिनेशन था। कैसा डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेसिज्म। इट मीन्स नस्ल के आधार पर भेदभाव। जब हम किसी देश में नस्ल, किसी के रंग या नस्ल के आधार पर भेदभाव करते हैं तो उसको बोलते हैं, अफ्रीका में क्या बोलते थे? अपार्थाइड सिस्टम। क्या था ये? अपार्थाइड सिस्टम। हम ऐसे समझ सकते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट पीपल, इनमें व्हाइट पीपल ब्लैक पीपल पर क्या ऑपरेस्ट करते हैं, इनके साथ भेदभाव करते हैं, इसी को क्या बोलते हैं हम? अपार्थाइड सिस्टम। ओके, तो आगे क्या होता है बेटा? इस कंट्री में ऐसा माना जाता था कि जो ब्लैक लोग हैं ना, ब्लैक पीपल, इनके साथ बहुत भेदभाव हुआ, डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो क्या क्या हुआ सर? इनके पास सर राइट्स नहीं है। क्या नहीं है? राइट्स नहीं है, अधिकार नहीं थे। और सर एसोसिएशन फॉर्म, संगठन ए नहीं बना सकते थे, और गवर्नमेंट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते थे। किसके अगेंस्ट था? गवर्नमेंट। और एक और नो अलाउ इन व्हाइट रीजन एरिया, जहां पर व्हाइट पीपल रहते हैं ना, वहां पर इन लोगों को अलाउ नहीं था। अगर उस एरिया में आएंगे तो ऐसा माना जाता है कि इनको गोली से शूट कर दिया जाएगा। ये क्योंकि ये ब्लैक पीपल थे। लाइक इन इंडिया देयर इज कास्टिज्म। हमारे देश में क्या है? जातिवाद, धार्मिक कट्टरता। लेकिन अफ्रीका में क्या था बच्चों? नस्ल के आधार पर भेदभाव, कलर के आधार पर, ब्लैक और व्हाइट पीपल। जो व्हाइट है वो ब्लैक को परेशान कर रहे थे, ऐसा हो रहा था।
लेकिन आप समझ सकते हो इन इंडिया देयर इज अ मैन हु फेस दिस दैट काइंड ऑफ सिचुएशन. द मैन इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. he was from the backward caste, it means दलित सोसाइटी. तो उन्होंने इस बात को पेश किया, ऐसे ही इन्होंने फेस किया है. तो इसी में ब्लैक प्रेसिडेंट थे, तो इन्होंने एक क्या बनाया बेटा, एक पार्टी बनाई, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस. ओके, फॉर्म वाई, मतलब आगे चल के उसमें लीड करते हैं. और इस पार्टी ने क्या किया, प्रोटेस्ट किए. किसके लिए, फॉर द राइट ऑफ ब्लैक पीपल, जो काले लोग थे उनके लिए इन्होंने अधिकारों की मांग की. और इसमें मेन हीरो कौन थे, नेल्सन मंडेला. और मंडेला जी ने क्या किया, इसमें बहुत सहयोग किया. और सर 28 ईयर कहां रहे ये सर, जेल में. कहां रहे, जेल में. कितना स्ट्रगल किया हुआ इस इंसान ने बेचारे ने. उसके बाद 1994 में, कब, 26 अप्रैल 1994, इट मीन 6 and 23, 28 और 29 ईयर से अगो, आज से लगभग 30 साल के समथिंग, इतने साल पहले, 29 साल पहले ये कंट्री क्या है, एक इंडिपेंडेंट हुआ. क्या हुआ, इंडिपेंडेंट. कौन हुआ, साउथ अफ्रीका. और इसी में प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन बनते हैं, ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ द वर्ल्ड, नेल्सन मंडेला. ये स्टोरी है ब्लैक पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका, नेल्सन मंडेला की ये स्टोरी है. ओके, समझ गए बच्चों. नेल्सन मंडेला अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में से एक थे. उन्होंने स्ट्रगल किया 1964 टू 1994, 28 ईयर तक जेल में रहे. फिर भी प्रोटेस्ट चलते रहे. महात्मा गांधी भी साउथ अफ्रीका गए थे, तो उन्होंने रंग भेदी परंपरा बोलते हैं हिंदी में इसको, उसका विरोध किया था. और उन्हीं के आदर्शों पर चले नेल्सन मंडेला जी, और दुनिया के पहले रंग ब्लैक प्रेसिडेंट बने नेल्सन मंडेला. ओके बच्चों, आर यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग? एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क मी, प्लीज रेज योर क्वेश्चंस. फिर बात करते हैं अपार्टheid सिस्टम क्या है. I have a question. यस, आस्क. The democracy in Mexico is true or not? This is not true because in the democratic country we have need 4 kind of things. First of all, in the country elected member have a right to decision. किसी भी देश में इलेक्टेड मेंबर होते हैं ना, उनको राइट होता है क्या करना, किसी भी चीज का बदलाव करने का. और एक क्या है, फेयर एंड फ्री एंड फेयर, ये रूल होना चाहिए. और उसके साथ ही वोट, राइट टू वोट. और लोगों के पास क्या होना चाहिए, बहुत बढ़िया, आप लोगों को पता है, वेरी नाइस, राइट्स. तो बच्चे अब यहाँ फ्री एंड फेयर इलेक्शन में क्या हो रहा था सर, एक है चाइना और एक है मैक्सिको. चाइना में ये है कि वन पार्टी है एनसीपी, और इसी में आती है चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, उसका मेंबर बनो. और कम्युनिस्ट पार्टी है जो कि एक तरीके से डिक्टेटर टाइप की है. मैक्सिको में क्या हुआ बेटा, 1930 में ये कंट्री होता है इंडिपेंडेंट, और यहां से इसने क्या की, पावर को होल्ड कर लिया यहाँ के प्रेसिडेंट ने. और लगातार फ्रॉम 1932 सिंस 2000 यहां तक एक ही पार्टी, और उस पार्टी का नाम था PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवोल्यूशनरी पार्टी. उसी का मेंबर लगातार रूल कर रहा है. तो ये तो डिक्टेटर हो गए होंगे. अगर कोई लगातार एक ही व्यक्ति गवर्नमेंट के रूल में रहेगा तो उसके पास पावर भी है, और वो धीरे धीरे निरंकुश हो जाएगा, जो कि लोगों पर अत्याचार करेगा, ऐसी पॉसिबिलिटी है. तो ये टाइप थे डेमोक्रेसी में जो होना जरूरी है, बट नेगेटिव फैक्टर के तौर पे नहीं. अब बात आती है Demerits of democracy. डीमेरिट से ये होता है कि जब डेमोक्रेसी, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डेमोक्रेसी लिखा है, लेकिन फिर भी इलेक्शन के टाइम पर क्या हो रहा है, रिश्वतखोरी चल रही है, माल प्रैक्टिस चल रही है, और कॉन्स्टिट्यूशन के रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, हमारे लीडर करप्शन कर रहे हैं, देश को लूट रहे हैं, और कंट्री के जो राइट्स हैं लोगों के, वो राइट्स प्रॉपर वे में नहीं मिल पा रहे. डीमेरिट्स हैं कब, जब प्रॉपर वे में गवर्नमेंट काम नहीं करेगी. बिकॉज वी आर द पीपल बट वी आर रियल किंग एंड
they are our representative member of parliament and assembly, these are our servant, क्योंकि हम इन्हें उन्हें भेजा है। इसमें आगे आता है बेटा, इस टॉपिक को हम एंड करते हैं तो उसमें आगे बढ़ते हैं, और ये है वाइज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का हेल्प हम क्यों लेते हैं बेटा? तो डेमोक्रेसी इसलिए जरूरी है, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जरूरी नहीं है कि कोई कंट्री हो उसमें डेमोक्रेटिक कंट्री होना जरूरी है, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन ब्रिटेन में नहीं है लिखा हुआ, बट फॉलो हो रहा है, तो पॉसिबल तो है। लेकिन इंडिया जैसे कंट्री में, इतने बड़े डाइवर्स कंट्री को संभालने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जरूरी है। ओके सर, खराब कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी कंट्रीज की? बेटा कॉन्स्टिट्यूशन खराब कोई सा नहीं है, बट प्रोविजन नेगेटिव फैक्टर हो सकते हैं। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें लिखा है राइट टू वोट नहीं है आपको। गवर्नमेंट जिम्बाब्वे में ऐसा हुआ था, जानू पीएफ पार्टी थी 1980 में आई पावर में, और रॉबर्ट मुगाबे, उन्होंने क्या किया, कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर दिए कि कोई भी व्यक्ति क्वेश्चन नहीं कर सकता है किससे, गवर्नमेंट से। तो ये नेगेटिव फैक्टर है जब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस हम कर देते हैं तब। ठीक है, रसिया एक सोशलिस्ट कंट्री, समाजवाद। व्हाट इज समाजवाद, व्हाट इज सोशलिज्म? जैसे रामायण में भगवान राम थे, उनके पिताजी थे दशरथ जी, तो उन्होंने जो राज शासन था ना, उसको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया अपने 4 बच्चों को। किसी को ज्यादा या कम नहीं दिया, बल्कि राम बड़े थे, लेकिन बोले सभी बच्चों को बराबर बराबर बांटना है। तो अपनी जागीर के हिस्से को, साम्राज्य को बराबर बराबर सभी 4 भाइयों में बांट दिया राजा दशरथ ने। ये प्राचीन काल में सबसे पहले समाजवाद का उदाहरण है, जिसको आगे चल के किसने फॉलो किया, कार्ल मार्क्स और लेनिन ने। ओके, यही रूस में है, रसिया में। हमारा कंट्री भी सोशलिस्ट है। I have a question. यस, आस्क प्लीज। Why is the South African constitution considered a noble constitution? नोबल इसलिए क्योंकि वहां पर है ना, जो व्हाइट पीपल है और ब्लैक पीपल है ना, ऐसा नहीं बोला मंडेला जी ने कि भैया तुमने हम पर अत्याचार किया है तो हम भी तुम पर अत्याचार करेंगे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा वी क्रिएट द कॉन्स्टिट्यूशन वेयर द पीपल व्हाइट और नॉन व्हाइट पीपल लिव टुगेदर विद हैप्पीनेस, अदरवाइज इट नॉट हैपेंड, आई वुड लाइक टू डाई एज लाइक दैट। उन्होंने कहा मैं मरना पसंद करूंगा अगर मेरे सामने ये चीजें ना हो पाए तो। और प्रेसिडेंट बनते हैं और दोनों लोग आराम से रह रहे हैं मजे से। साउथ अफ्रीका की टीम में देखा है, जैसे रवाडा है ब्लैक है, एबी डिविलियर्स इज व्हाइट, राइट? ये है दोस्त। I have one more question. यस बेटा। Why was making of the Indian constitution a difficult task? क्योंकि बहुत बड़ा था, लेंदी था, और हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी। क्वेश्चन ये है इनका कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना लेंदी क्यों, इतना बड़ा क्यों है? भैया पॉपुलेशन ज्यादा थी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, जैन, बौद्धिज्म, माइनॉरिटी, इतने लोग थे। इतने बड़े देश को चलाने के लिए संविधान बड़ा होना चाहिए, सभी लोगों को अपने कंट्री में समाहित करना बहुत बड़ी बात। ओके, अब हम यहाँ से स्टार्टिंग कर रहे हैं इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बिगनिंग की, फिर हमारा टॉपिक होता है एंड। तो अभी हमारे पास टाइम है, सो प्लीज स्टार्ट। और ये हेडिंग डालिए सभी बच्चे, द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारत के संविधान का निर्माण। संविधान का निर्माण, यहां से रूपरेखा मिलती है, ग्राउंड प्रिपेयर होता है कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए। ओके, मैं आपको एक फैक्ट दे रहा हूं बेटा। सर दिस वाज द टाइम पीरियड, this was the time period 1757 and this was the 1857 and this was the 1947। यहां से कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। समझो कैसे। 1757 यूरोपियन कंपनी इंडिया में आ चुकी थी, इंडिया में यूरोपियन कंपनी आ गई है और रूल कर रही हैं। फ्रॉम द before the time of 1757, this was the time 1739, the battle of Karnal, in the battle of Karnal, यहां से क्या होता है, नादिर शाह came to India and attack on over the Mughal Empire, और मोहम्मद शाह रंगीला होता है यहाँ पर बैटल ऑफ करनाल में।
मोहम्मद शाह रंगीला को पकड़ के मुर्गा बना देता है, कौन? नादिर शाह। और यहां से इट वाज गिवन द मैसेज दैट द बॉस ऑफ इंडिया इज डेड। भारत का जो नेता है, जो राजा है, वो मर चुका है। ऐसा नहीं कि मोहम्मद शाह रंगीला मर गए, लेकिन यह है कि आप इंडिया के जो मुगल एम्पायर है वो वीक हो गया, कमजोर हो गया, और जब भी आप कमजोर होंगे लोग आप पर अटैक करेंगे। तो यहां से 1757 में कौन आई? ईस्ट इंडिया कंपनी। और ईस्ट इंडिया कंपनी में थे रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव he was a great intellectual mind. He is a composition of सचिन तेंदुलकर, लाइक डिविलियर्स और MS धोनी। कैप्टेंसी, इसको रूल करना आता था कि मुझे कहां पर कैसे P=P फॉर्मूला है। पॉलिसी अकॉन डिपेंड्स अपॉन प्रायोरिटी, जो मुझे जरूरत है उसी के अकॉर्डिंग मैं पॉलिसी बनाऊंगा। ओके, तो यहां क्या होता है, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया है, बैटल ऑफ प्लासी में सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब, उसको हरा दिया। इट मींस वो भाग गया तो जीत गए। और यहां से लिख लेना, ईस्ट इंडिया कंपनी, द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी स्टार्ट द इंटरफेयर इन द इंटरनल मैटर एंड पॉलिटिकल मैटर ऑफ इंडिया। भारत के आंतरिक और राजनीतिक मामलों में किसने हस्तक्षेप कर दिया? ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बल्कि ये किस लिए आई थी? ट्रेड करने के लिए। लेकिन ट्रेड तो कर रही है, लेकिन अब क्या करने लगी सर? पॉलिटिकल प्लस इंटरनल, राजनीतिक और आंतरिक मामलों में, अफेयर में शामिल होने लगी। और फ्रॉम 1757 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम द किंग मेकर। ये जिसको चाहे उसको राजा बनाएंगे, ये इसको चाहे जिसको भिखारी बना सकते हैं। एंड दे कॉल दैट हु वांट टू बिकम द किंग, तो देन मीर जाफर केम, भाई साहब मुझे राजा बनना है, अब बना दो इसको, राजा बना दो। मीर जाफर बना दिया। और 57 to 96 3 साल बनता है। ईस्ट इंडिया कंपनी बोलती है भैया पैसे दो, टैक्स चाहिए। बोलता साहब नहीं है, बोला उधर हटा इसको। मीर कासिम को बना देते हैं बंगाल का नवाब। और 1857 द रिवॉल्ट होता है, फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। यहाँ हमने लड़ाई लड़ी, क्यों ना, झांसी का नाम सुना हो आपने, ये यहीं पर लड़े। और 1947 में इंडिया होता है इंडिपेंडेंट। 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बनता है हमारा। और 1950 इंडिया बिकम रिपब्लिक डेमोक्रेटिक कंट्री, राइट। अब इसमें आते हैं आगे कि हमारे संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन कैसे हुआ। इन विच कंडीशन द फॉर्मेशन ऑफ हैपेंड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 3 चीजों के आधार पर हुआ बेटा। एक कौन सा सर? डाइवर्स ग्रुप, इसको आप नोट डाउन कर लेना। डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलीजियन, अलग अलग धर्म के लोग थे और समाज के लोग थे। और एक बात और क्या थी? पार्टीशन ऑफ इंडिया। पार्टीशन क्या होता बेटा? विभाजन, भारत पाकिस्तान का विभाजन। ओके, द पार्टीशन ऑफ इंडिया एंड डाइवर्स ऑफ रिलीजियन, हमारे धर्म के आधार पर परिवर्तन यहाँ पर हुए थे। समझ रहे हो बच्चों? ये कुछ चीजें थी और सोसाइटी में परिवर्तन आया। तो इनमें समझना जरूरी है कि डाइवर्स ग्रुप ऑफ रिलीजियन क्या था, धर्म के आधार पर लोगों में बदलाव हुए। और ये है हमारा पार्टीशन, विभाजन। किसका हुआ सर? इंडिया पाकिस्तान का पार्टीशन हुआ, विभाजन, जून 1947 में, जिसमें 10 लाख लोगों से भी ज्यादा लोगों की डेथ हुई थी उस लड़ाई में। तो ये कुछ कंडीशंस थी। और जो थर्ड कंडीशन है ना, वो हमारे है पार्टीशन के साथ साथ में सोसाइटी के आधार पर समाज में जो परिवर्तन आ रहे थे उसके अकॉर्डिंग भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, सामाजिक तौर पर बदलाव किसमें? भारत के संविधान में। ओके, फिर यहां से बात करते हैं, सीधे आते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन पर। 19 यहां से सुनो बच्चे, 1946, इस बात को समझना। दिसंबर 1946 सर, 9 दिसंबर, 11 दिसंबर एंड 13 दिसंबर। इस पॉइंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। 9 दिसंबर को फर्स्ट मीटिंग हुई थी। क्या हुई थी? फर्स्ट मीटिंग किसकी? कॉन्स्टिट्यूएंट
असेंबली की, संवैधानिक जो सभा की। और यहां पर कौन बने थे? टेम्पररी हेड कौन बने थे? टेम्पररी समझ रहे हो? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ओके, 1-2 दिन के लिए बने थे। और 11 दिसंबर को कौन बने? BR अम्बेडकर। ही बिकम द चेयरमैन एंड हेड ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस 13 दिसंबर। PT नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या रखा? ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य प्रस्ताव कि हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। एक कंडीशन थी मीटिंग की। और फिर हम आते हैं इसके पाथ में, तो समझ रहे हो? भारत के संविधान को बनने की कुछ रीजंस। तो जो पाथ टू मेक कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे बनने कॉन्स्टिट्यूशन को बनने की कुछ रूपरेखा रही होगी। तो सबसे पहले बच्चों 1928, यहां पर समझो कौन थे? मोतीलाल नेहरू। इन्होंने क्या किया? ड्राफ्ट तैयार किया। एंड इट्स 8 मेंबर, इनके 8 मेंबर थे। उन्होंने क्या किया? कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया, एक प्रारूप बनाया, ठीक है। और इसके साथ में 1931 कहां पर सेशन हुआ? कराची कहां पड़ता है बच्चों? पाकिस्तान में। कहां पर है? पाकिस्तान में, कराची सेशन। और इसमें क्या हुआ? INC ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने संविधान को अप्रूवल दे दिया कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है। और 1937 यहां पर हुआ लेजिस्लेटिव प्रोविनेंस के क्या हुए? इलेक्शन, चुनाव हुए। और ये किस एक्ट के तहत हुए थे? 1935 का इंडियन गवर्नमेंट एक्ट, इसके तहत। और लास्ट जो मतलब ये है कि एक तरीके से भारत के संविधान में बनने की कुछ रूपरेखा है। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने बनाया। इससे पहले 1924 में स्वराज पार्टी थी, 24-23 सबसे पहले डिमांड उसी पार्टी ने की थी कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। और 1922 महात्मा गांधी ने भी संविधान के बारे में बोला था कि हमें संविधान चाहिए। लेकिन इन्होंने प्रोसेस, हु वाज मोतीलाल नेहरू वाज द फादर ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो एक आइडिया हमने लिया, we had taken the idea of constitution from French and Russian revolution, French and Russian revolution। यहां से क्या लिया? आइडियाज फ्रॉम, इन कंट्रियों से हमने कुछ आइडिया लिए जिससे हमारा संविधान बनके तैयार हुआ। ये बैकबोन थी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बनने की। अब बात आती है सर कितने मेंबर थे? तो टोटल बच्चे जो मेंबर थे ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो थे 389। ध्यान से सुनना बच्चों, ठीक है? इतने मेंबर थे, ठीक है, 389। लेकिन जब इंडिया और पाकिस्तान जब अलग हो गए ना, तो पाकिस्तान के पास कितने चले गए? 90 मेंबर। तो इंडिया के पास कितने बचे? 299। इतने मेंबर थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की असेंबली में। कहां पर? कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। समझ गए बच्चों? ये थे कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के मेंबर। अब बात आती है कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे? BR अम्बेडकर, ठीक है। और इसी के साथ इसमें जब गवर्नमेंट बनी हमारी इंडिया की 1950 की, तो उसमें बताया गया डिफेंस मिनिस्टर थे बलदेव सिंह, ओके, एंड फर्स्ट प्रेसिडेंट वाज राजेंद्र प्रसाद, एंड डिप्टी प्राइम मिनिस्टर वाज सरदार वल्लभ भाई पटेल, एंड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज पंडित जवाहरलाल नेहरू, ओके। ये कुछ लीडर थे। और HC मुखर्जी वाज द गवर्नर जनरल ऑफ
बंगाल आफ्टर द लॉर्ड माउंटबेटन। समझ रहे हो? अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन के बनने से पहले कुछ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा कुछ एक्ट आए, जैसे एक क्रिप्स मिशन आया, ठीक, फिर एक कैबिनेट मिशन आया, और कैबिनेट मिशन कब आया? 1946 में, और ये 1942 में। इस तरीके से ये मिशन आए और इन लोगों के द्वारा धीरे धीरे कॉन्स्टिट्यूशन बना। लेकिन 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनके तैयार हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है, डन, काम कंप्लीट था। अब कोई आपसे पूछे कितने दिन में बना, तो ये आपको मेमोराइज करना है, मैं आपको बताता हूं अभी। राइट, गुड। किसने बताया? Who said that? I told you my dear। सुनो, पहले कॉन्स्टिट्यूशन जो बनाना उसके बारे में समझ लो। कॉन्स्टिट्यूशन डिजाइन होने में टाइम कितना लगा? 118, इतने तो सेशन हुए, या 114 के अप्रॉक्स, ठीक, आई थिंक 114 है। और 54 लाख कितने रुपए लगे? 14 लाख। और तैयार होने में टाइम लगा 2 ईयर 11 मंथ 18 डेज, इतने दिन लगे। समझ गए? तैयार कब हुआ? 26 नवंबर 1949 कॉन्स्टिट्यूशन बनके रेडी। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं? 26 नवंबर। लेकिन आपका भी क्वेश्चन आता है, आपने सोचा है जब इतने को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया तो फिर हमने इतना वेट क्यों किया? 26 जनवरी 1950, 1-2 महीने का वेट क्यों किया हमने? मैं बताऊं आपको क्यों किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमने लाहौर सेशन, क्या लाहौर कहां पड़ता है? पाकिस्तान में। लाहौर सेशन कब? 1929, 26 जनवरी। इस दिन हमने क्या रखा? कंप्लीट फ्रीडम, कंप्लीट स्वराज, पूर्ण स्वराज। ये हमारे नेताओं ने रखा, पूरे लीडर ने। तो हमने बोला कि 26 जनवरी 1929 को हमें आजादी लेना है, लेकिन नहीं मिल पाई क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। तब हमारे अंदर एक फीलिंग थी कि हम आजाद तो कब होने थे? 26 जनवरी को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और भी हमारे संविधान सभा के नेताओं ने कहा वी हैव टू वेट, हमें इंतजार करना है कब का? 26 जनवरी का। तो उसी दिन 26 जनवरी को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ और हम क्या बने? रिपब्लिक। रिपब्लिक बोले तो डेमोक्रेटिक कंट्री बने। कब? सिंस 26 जनवरी 1950। अब थोड़ा सा और ये टॉपिक बचता है, फिर आपकी परेशानियां मुझे दिख रही हैं आपके चेहरे पर, फिर एंड करते हैं। 2 मिनट और वेट कीजिए आप बच्चों, फिर इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। देखो अभी इसमें क्या है बच्चों, कॉन्स्टिट्यूशन का ये तो थोड़ा बहुत उसका व्यू है। मैंने इसके मेंबर तो मैंने बता दी कि कौन किस पद पर था, ठीक है। ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे BR अंबेडकर, ध्यान रख लेना। किसके? ड्राफ्टिंग के। ड्राफ्टिंग कमेटी के कौन थे? डॉक्टर BR अंबेडकर। ये कहां के थे? महू, इंदौर, मध्य प्रदेश। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के हेड थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब उसके बाद आता है, हमारे पास थोड़ा सा और टाइम बचता है, कुछ गाइडिंग वैल्यू है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, कुछ वैल्यू। और वैल्यूज कैसे हैं? जो हमारे कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के लीडर थे, जैसे गाइडिंग वैल्यूज। एक क्या होता है बच्चों? एक है हमारे जिनका नाम है महात्मा गांधी। इन्होंने 1931, कब? 1931 इसमें एक्सप्रेस किया, क्या एक्सप्रेस किया? अपना आइडिया। किसका? स्वराज का। एक मैगजीन है, उसमें स्वराज के बारे में बताया। और इसमें एक व्यक्ति और है पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये क्या बोलते हैं? वी वांट टू प्रोवाइड इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल पीपल, सभी लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब सबको समानता का अवसर प्राप्त हो।
और एक और व्यक्ति है डॉक्टर BR ये बोलते हैं वी हैव टू प्रोवाइड द पीपल हैव टू राइट लाइक सोशोलॉजी, सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक। एक क्वालिटी मिलनी चाहिए, कहने से नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा इन्होंने बोला। अब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की। तो हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन कौन कौन सी मोरल वैल्यूज है वो देखो। मोरल वैल्यूज जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। और एक बात और बच्चों सुनो, हमने पार्लियामेंट सिस्टम लिया ब्रिटेन से, ठीक है, फंडामेंटल राइट लिए अमेरिका से, ड्यूटी लिए रसिया से, इमरजेंसी ली जर्मनी से, और DPSP लिए आयरलैंड से, और प्रेसिडेंट की पोस्ट ली अमेरिका से। ओके, कुछ टाइम से बच्चों 2 मिनट का और बचता है, उसके बाद ये हो जाता है एंड। मोरल वैल्यूज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ओके बच्चों, तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कुछ सेकुलर इट मींस वैल्यू है, जो विशेषताएं। हमारा संविधान कैसा है? सोशलिस्ट, सोवर्जिन, सेक्युलर, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है? डेमोक्रेटिक राइट। क्या है? डेमोक्रेटिक राइट। इसके साथ सर इक्वलिटी और लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, एंड साथ में सिक्योरिटी। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मोरल वैल्यूज क्या है? सर सोवर्जिन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक राइट्स हैं, इक्वालिटी है, लिबर्टी है, फ्रेटर्निटी है, इट मीन्स भाईचारा, और सिक्योरिटी है। ये पूरी की पूरी गाइडिंग वैल्यू है जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है, ठीक है। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कुछ लीडर्स हैं जिनके थॉट्स इसमें पब्लिश किए गए। इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन का डिजाइन एंड द कॉन्स्टिट्यूशन का डेवलपमेंट, दोनों चीजों को हमने कंप्लीट किया है कि डिजाइन क्या है, किस तरीके से हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का धीरे धीरे डिजाइन किया। तो आज की क्लास बहुत लेंथी हो गई, आपके चेहरे बता रहे हैं, इस बात का प्रूफ दे रहे हैं। भारत माता की जय हिंद।